Commander Dr. Sajjad Hajari and his team to please come on stage. And please, are there any questions from Mr. Navi? पता है कि ये जो आपने वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन की कैपेसिटी कितनी है, इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच एनर्जी कैन इट प्रोड्यूस? Energy in terms of what? Watts. Power output, sir, it can go up to, what we have done so far, it's about 1 kilowatt. 1 kilowatt की और इसकी कटल स्पीड कितनी है? So current speed इसकी जो है अभी at this moment it's working around 1.3 meter per second. 1.3 मीटर पर सेकंड कटल स्पीड है, 1.3 में चल पड़ती है अगर बिल्कुल डेड होती है? नहीं सर. Curtain speed is at the minimum speed at which it starts rotating. Sir, that's what I'm telling you. 1.3 meter per second पे start हो जाता है. Amazing. What's the design speed for maximum production? What's the design speed for maximum production? Sir, design speed जो है maximum flow direction it's about 10 meter per second. 10 meters. 1 kilowatt. 10 meter per second. No, for the design speed it is going to reach about 15 meter and 20 meter per second. Then we can achieve 1 kilowatt easily. 15 to 20 in between that. Because we have in between 15 to 20 because it's a variable at the moment. We haven't confirmed it yet. Yes, it's like variable. No. जो simulated results है, उसमें we were getting approximately 18, but जो हमने जब testing, we showed in the video also, there was no other option available, so we borrowed the मस्जिद का बड़ा वाला पंखा है, तो उससे we were trying to flow, तो उसके जो दायरे में हमने अपने इसका चार्ज कंट्रोलर डिजाइन हो गया? सर इसका कॉन्सेप्ट चार्ज कंट्रोलर डिजाइन हो गया? सर चार्ज कंट्रोलर्स का बेसिकली दैट व्हाट वी हैव परचेज्ड एट द मोमेंट. अच्छा ठीक है. Because and how much would this cost? Because you might know that we have 1 kilowatt wind turbines available from China. I know it. और उनके गीस आप compete करेंगे. So have you computed the cost for the product? जी सर, वो हमने basically what we have carried out कि चाइना की जो wind turbines आ रही हैं, वो वेरियस रेंज में आती हैं और 10 किलोवाट तक जो टर्बाइन दिखाया जाता है कि सबसे बड़ा इशू उनके जनरेटर का है. जो जनरेटर लगा हुआ है हमारा पास एट द मोमेंट जो हम फर्मली वी कैन क्लेम जो हमने एक्सपेरिमेंटल टिकट लिया है वो 1 किलोवाट के जनरेटर की तरफ कैरी गवर्नमेंट उसकी जो चाइना से प्राइस आ रही है पाकिस्तान में आने के बाद इट कॉस्ट 3.5 3.5 लाख रुपए की आती है. ये वाली प्राइस और जनरली ये ओवर रेटेड है, वो फॉल्स क्लेम्स पर है क्योंकि उतना प्रोड्यूस नहीं करती. हमारी वाली 1 किलोवाट अगर हम कहते हैं 1 किलोवाट प्रोड्यूस करती है, जनरेटर चाइना का है. वी इंटेंड टू अपग्रेड इट क्योंकि हमारे पास सिमुलेशन रिजल्ट्स बेहतर है. वी वांट टू गो टिल 10 किलोवाट और अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगे तो वी विल बी कंपीटिंग विद चाइना. उसकी 10 किलोवाट की टर्बाइन तकरीबन 5 से 7 के दरमियान आई है. ये अलीबाबा की प्राइस है. वैसे ना ये 1 किलोवाट की टर्बाइन्स हीलिक्स टर्बाइन होती है सर वो अवेलेबल थी और वो किसी ने यहाँ IEEE के सिम्पोजियम में प्रेजेंटेशन दी थी कि उसने हाई राइज बिल्डिंग की ऊपर एक साइड पे जहाँ से आती है उसने उस 1 किलोवाट की कई टर्बाइन फिर भी 10 टर्बाइन लगा दी थी. वो हीलिक्स कॉन्फ़िगरेशन तो वो आ रही थी, उनकी प्राइसेस काफ़ी अट्रैक्टिव थी. याद तो नहीं पुरानी बात, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि if you want to commercialize any such product, Chinese are the ones that we compete with. So we need to figure out कि what will be our competitive edge. जो आपके normal horizontal axis वाले wind turbines होते हैं, तो वो तो 11 मीटर पर सेकंड के ऊपर उनका मैक्स पावर होता है ना. तो because that's a more realistic condition, 11 meters per second. Ma'am, is that's a much more realistic condition, but than this, Ma'am, that's a more realistic condition, but let me just put one thing over here. 15 to 18 meter per second what we are saying at the moment because we have been doing lab testing at the moment. Okay, we haven't gone yet for the testing on the actual form, which is the going towards the environment. So once we go over there and once we collect those results, we will be more efficient enough to tell them on which avenue, on which bracket we will be getting the exact result. So predicting by simulation and predicting calculatively is completely different. What we always get
from the actual experimentation. So actual experimental we haven't done it, and we have just, that's why we have just, yeah, we haven't done that test. That's the thing, okay? इरफान साहब, इरफान साहब, ये है, हम इसका पावर कर्व देख रहे थे, तो बड़ी हाई स्पीड्स पे जाके ये अपनी फुल कैपेसिटी पे आती है, आई थिंक 1.4 किलोवाट पे। तो आप एक एवरेज 1 किलोवाट का जनरेटर है आपका, अराउंड 10-11 मीटर्स पर सेकेंड। सर पाकिस्तान का अगर आप विंड डेटा देखें तो 4 to 4.5 मीटर्स पर सेकंड की विंड स्पीड बहुत जगह है ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। और हमारे रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे जहाँ ये यूज़ हो सकती है, कोस्टल एरियाज़ में तो विंड स्पीड्स हाई हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ जो अंदर हैं तो ये आप इसकी एफिशिएंसी वगैरह इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपने कोई प्रोजेक्ट किया है कि क्या बेहतर हो जाएगी एफिशिएंसी डिज़ाइन चेंज करने से? वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है वो हमारे 4 to 4.5 मीटर्स पर सेकंड की विंड स्पीड्स को, एवरेज विंड स्पीड्स को यूटिलाइज कर ले। सर इसमें what I can submit के there were 3 or 4 एरियाज थे जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा लोग रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जो हमने जनरेटर सबसे पहले कंसीव किया था वो शायद हमने आपको दिखाया भी था, इट वॉज सो हार्ड एंड सो स्टिकी कि वो विंड टर्बाइन के साथ घूम ही नहीं रहा था। तो वी स्पेंड सम टाइम देन, फिर भी डिसाइडेड कि हम चाइना से मंगवाएंगे। वी आर ऑल्सो अटेम्प्टिंग कि अगर हमने मैग्नेट मंगवा लिए कि अगर इफ यू कैन हैव अ गुड कंट्रोलर तो हम अपना जनरेटर बना लें, बट दैट्स आवर डेटा। देन वी अटेम्प्टेड वेरियस डिज़ाइन जो डॉक्टर आदिल ने वो किए हैं in order to increase the efficiency from the conversion from the wind to the mechanical। उसके ऊपर हमने 2 और डिज़ाइन को अटेम्प्ट किया हुआ है। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे वी अटेम्प्टेड ऑल्सो ट्विस्टेड ब्लेड हमने वी अटेम्प्टेड। तो यस वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज, मगर जो हमारा कोस्टल पे वो वाई वी आर मोर फोकस्ड कि एज पर द लिटरेचर रिव्यू और द विंड का डाटा अवेलेबल है, coastal is most promising and consistently we get across the whole year approximately 15 miles per hour, जो कि वैप होती है approximately close to 7 meter per second, उतनी हमें विंड बड़े आराम से मिल जाती है। तो उसके ऊपर we are hopeful that hopefully with practical experimentation on site we will be able to acquire a reasonable amount of power which can go for commercialization. We are aiming to get approximately 4 to 5 kilowatt. That is the aim at the moment. Definitely, जो मैंने दिखाया, जो हमने नीड को भी एक्सटेंशन, we have kind of some time. 10 साल तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वो हमें फंड नहीं कर रहे हैं। Then there is the opportunity across the globe. So if we start today, we should be having something of our own. हम तीनों एरिया पे काम कर रहे हैं, मैकेनिकल डिजाइन में कन्वर्जन from mechanical to electrical, and then conversion into storage or sending into the grid. So all the 3 spectrum we are trying to सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन तरीके से है कि नॉर्मली अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है नेट मीटरिंग को, बट आप अभी कराची में देख सकते हैं कि मोस्टली हाउसेस में 10 किलोवाट तक का सेटअप लगाया हुआ है रेजिडेंशियल, बट वो लगाया इस नेचर के लिए था अगर दिन में आप सोलर की यूटिलाइजेशन के साथ साथ प्लस ग्रिड को सेल करके देन नाइट में उनसे रिट्रीव कर सकते हैं पावर। बट अनफॉर्चुनेटली डिस्करेजिंग के बाद ऑफ कोर्स विंड पावर की तरफ जाने का भी एक काफ़ी ज़्यादा रुझान देखा गया है मार्केट में। तो क्वेश्चन ये था कि हमारी जो एवरेज विंड स्पीड है कराची की, उसके तहत अगर मैंने कोई 5 किलोवाट का विंड का सेटअप लगाना है तो मैक्सिमम विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या ये फिजिबल है? लेट्स से अगर मैं बैटरीज की जगह विंड की तरफ सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो इट फिजिबल के दिन में सोलर यूज़ कर लें और शाम के लिए विंड के थ्रू बैटरीज को स्टोर कर लें और शाम का लोड भी विंड के थ्रू चला लें फिजिबली कमर्शियल लेवल पे, इज इट फिजिबल? ये डिपेंड करता है कि वो आपका कस्टमर है कहाँ, क्योंकि मैं ही ओवर द लास्ट 1 ईयर एक बहुत ही क्लोज सिटी में 2 अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। एक में थोड़ा सा ही उसी लोकेलिटी में 2 हाइट पे था, तो वहाँ का जो वेस्ट ओपन उसके ऊपर वो घर बहुत गर्म था क्योंकि हवा वो भी वेस्ट ओपन था, दूसरा अपार्टमेंट वेस्ट ओपन। तो आई कैन नॉट गिव यू अ फर्म ब्लैंकेट आंसर तो नहीं हो सकता, मगर यस इसी वजह से व्हाट आई कैरिड आउट कि मैं विंड और सोलर को कंपेयर भी किया था। बोथ हैव देयर ओन इनहेरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वन फर्म आंसर और some rule cannot be dictated. Within Karachi, it doesn't make sense. Coastal is different. फ्री सिस्टम लगाएंगे आप ज़्यादा कमाएंगे,
मगर वो इतना महंगा है कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आप जाकर सोरापोर्ट के पास रहेंगे, obviously I can't just say it is where you are located, at what height you are talking about. So these are the factors. Sir, location matter. स्पीड पे डिज़ाइन किया है। अगर केस अगर स्टॉर्म आता है या कुछ आता है, हमारी जो स्पीड आपने डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा चली जाता है, तो ऐसा कोई ब्रेक सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिक आप उसको रोक सकते हैं अगर स्पीड क्रॉस करता है? नेचुरल डिजास्टर्स को तो हम लोग कर्टेल नहीं कर सकते। सेकेंडली, if that thing happens, we were working on the braking system as well. There are ways to break the thing, cut it out completely, cut its rotation as well. There are ways to do that. But the thing is that we haven't yet adapted. क्योंकि हम लोग जितनी velocities पे अभी तक work कर रहे हैं, that's very low. As I've already told you, around 5 meters or 10 meters per second, not more than that. We haven't gone more than that. Once we go on the above bracket, then obviously we will be requiring that in unforeseen circumstances, what we can do about it, specifically from the perspective of breakers.